دی جا سکے۔ آپ جتنے اس وقت مجھے ورچوئل دیکھ رہے ہیں، جتنے اس وقت چرچ آف پینٹیکوسٹ میں ہیں، میں کلیسیا کا پاسبان ہوتے ہوئے آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے زوردار تالیاں بجاتے ہوئے اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے، زوردار تالیاں بجاتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا پیغام جو ہے، آج کا کلام جو ہے، ہماری زندگیوں کے لیے پرمسرت ہے، باعث برکت ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ تاریک پہلو جو ہیں ان کو کریدے گا، اور ان تاریک پہلوؤں کے اندر جا کر اپنی روشنی بخشے گا، اور ہمارے وہ ساری جو تیرگی ہے، تاریکی ہے، اس کو ختم کر کے نور اور جلال سے ملبس کر کے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں استعمال کرے گا، تاکہ قومیں، قبیلے اور امتیں جان لے کہ آسمان کا خدا جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، وہ ہماری زندگیوں کے اندر بسیرا کرتا ہے۔ سو آئیے اسی ہی کے کلام مقدس کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کھولیں گے۔ بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے، جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کی زبان ہے، اور جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، قضات کی کتاب، دا بک آف ججز قضات کی کتاب ہے، جو جشوا کی کتاب کے بعد میں آئے گی۔ تورات کی پہلی 5 کتابیں چھوڑ کر پھر جشوا کی کتاب، اور جشوا کی کتاب کے بعد قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اسے قاضیوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، یا اسے دا بک آف ججز بھی کہا جاتا ہے۔ سو آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے، اور چیپٹر اس کا 7 ہے، 7واں باب ہے، اور 7ویں باب کی آیت نمبر جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا وہ دوسری ہے، 2nd ورس ہے، اس کی دوسری آیت کریمہ ہے۔ کتاب خدا کے اندر بہت سادہ لفظوں میں یوں لکھا ہے، تب خداوند نے جداؤن سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ جماعت کہہ سکتی ہے آمین۔ کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سادہ سی یہ آیت ہے۔ خدا کلام کرتا ہے بزرگ جداؤن کے ساتھ، اور جداؤن پرانے عہد نامہ میں قاضیوں کے زمانہ کا یہ ایک قاضی ہے، اور یہ ایک نبی بھی ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کا باغور مطالعہ کرتے ہیں تو جناب موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے جشوا کو قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اٹھایا۔ جیسے بزرگ جشوا اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد خدا نے بائبل مقدس کے اندر لکھا کچھ اور لوگوں کو اٹھانے کے بعد دبورہ کو اٹھایا، جو ایک واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے خاتون، جو بائبل مقدس کے اندر بطور جج ہے۔ اور اس خاتون کے بعد خدا نے بزرگ جداؤن کو اسرائیل کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے کہا۔ جس دن خدا نے جداؤن کو بلایا اور کہا تو میرا بیٹا ہے، تو اور آ کر اسرائیل کی غلبہ کر، اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی کر، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم جاننے والے ہیں کیوں خدا نے اس کے ساتھ کلام اتنا سخت کیا۔ اور سخت کلام کیا ہے؟ لکھے تب خداوند نے جداؤن سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کثرت جو ہوتی ہے لوگوں کی، ہم تو لوگوں کی کثرت چاہتے ہیں۔ پاسٹر آلویز یہی چاہتا ہے ہمارے کروسیڈ بھرے ہو، پاسٹر آلویز یہ چاہتا ہے میرا چرچ بھرا ہو، کلیسیائی رہنما یہ چاہتا ہے کہ میری کلیسیا ترقی کرے اور لوگ ارد گرد بہت زیادہ ہوں۔ دنیا کی قومیں، قبیلے، امتیں، دنیا کے ممالک یہی چاہتے ہیں۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے، جو تذکرہ ہو رہا ہے، وہ تو افواج کا ہو رہا ہے، وہ تو فوج کا ہو رہا ہے، وہ تو عام پبلک کا ہو رہا ہے۔ خدا نے کلام کیا، جداؤن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تیرے ساتھ اتنے لوگ ہوں اور تو جنگ کے لیے جائے۔ کیا یہ حیران کن امر نہیں ہے کہ خدا یہ کلام کرتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ہم لوگوں کی کثرت کو مانگتے ہیں،
हम चाहते हैं मशरक से भी लोग आए, मगरब से भी आए, शुमाल से भी आए, जनूब से भी आए, हमारी पॉपुलैरिटी हो, हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाए। और अक्सर व पेशतर आपने खादमों की दुआओं के अंदर ये जरूर सुना होगा, खुदावंद आज मैं इबादत के लिए आया हूं, या इबादत करनी है, क्रूसेड करना है, या कन्वेंशन हो रही है, खुदावंद रेलों की तरह लोग आए, मशरक से, मगरब से, शुमाल से, जनूब से, ये पंडाल भर जाए, ये जगह भर जाए। खुदावंद हम लोग ही लोग देखना चाहते हैं, लेकिन खुदा यहां कलाम करना जरूरत नहीं है। ये कोई हैरान कुन अमर नजर आ रहा है, इसके अंदर एक बड़ी मिस्ट्री है, एक बड़ा भेद है कि खुदा चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द जो बहुत ज्यादा तादाद है उसे पीछे कर दे। हम सारी उम्र एज अ लीडर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो रिलीजियस लीडर है, चाहे वो सोशल लीडर है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट है, कोई भी लीडर है, हर लीडर की तमन्ना, हर लीडर की ख्वाहिश होती है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोग हों और मैं लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए काम करूं और लोग मेरे लिए काम करें। यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, इसके लिए रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, और इसके लिए पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लोगों के साथ लॉबी की जाती है, लोगों को बुलाया जाता है कि किसी तरीके से लोगों की कसरत हो, यहां तक खुराक दी जाती है, खाने दिए जाते हैं, बसें दी जाती है, पता नहीं क्या क्या जतन किए जाते हैं, किस लिए? लोग ज्यादा हो। खुदा कलाम करना जरूरत नहीं है। कोई अजीब बात नहीं है। हम तो सारी उम्र इसी चक्रों में रहे हैं कि मेरा फिगर ज्यादा होगा तो पता चलेगा मैं बहुत पॉपुलर लीडर हूं, मेरे पास एक बड़ा इज्तिमा होगा। आज आप देख सकते हैं, आज ऐसा ड्रामा चला हुआ है इस मुल्क के अंदर। ये एक फिश लेंस आया है, और आप जानते हैं कि फिश लेंस जब लगाया जाता है कैमरे के अंदर, वो वाइडल करके दिखा देता है, तो अगर वो छोटी गैदरिंग भी हो तो वो बड़ी नजर आती है, ताकि लोगों के ऊपर इंप्रेशन हो, मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ पब्लिक है, देखो कितनी बड़ी पब्लिक है। और आज टेक्नोलॉजी ने ऐसा अजीब फड्डा डाला है, बेईमानी तो पहले ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को ऐसा मिसयूज करके, ऐसी बेईमानी करके लोग दिखा रहे हैं एक दूसरे को, देखो मेरे साथ कैसे लोग खड़े हैं। खुदा कलाम क्या करता है? देखो मैं कितना पॉपुलर हूं, देखो मेरे साथ कितनी जनता है, कितने लोग हैं, चाहे वो फेक पिक्चर हो, चाहे वो फोटोशॉप के साथ किए हों, चाहे वो फिश लेंस से हो, चाहे वो डिफरेंट लेंसेज इस्तेमाल करके उसको शूट करवाया गया हो और बताया जाए देखो ये हैं वो लोग जो मेरे साथ है। गो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है, गो ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक ढंग और टूल है। लेकिन खुदा कलाम क्या करता है? तब खुदा ने जदाऊन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा, मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ये क्यों खुदा को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है? क्यों खुदा चाहता है कि लोग कम हो जाएं? क्यों खुदा चाहता है कि लोगों की भीड़ जो है, इस भीड़ के अंदर से खुदा लोगों को चुनना चाहता है, खुदा इंतखाब करना चाहता है भीड़ के अंदर से। अब खुदा ने कलाम किया जदाऊन से कि मुझे नहीं चाहिए ये लोग। हुआ क्या था? कहानी को जरा आराम से समझिएगा। कहानी ये है, इसका सियाको सबाग ये है कि मदियानी जो है, मदियानियों ने पिछले 7 सालों से इस्राएलियों के नाक में दम किया हुआ है। ये मदियानी वही हैं जो जनाबे मूसा के साले की नस्ल से लोग हैं, जनाबे मूसा के ससुर रहुएल की नस्ल के ये लोग हैं। और रहुएल और यत्रू और या रुबाब जो है, युबाब जो है, ये सारे की सारी नस्ल जो है, ये बुजुर्ग मूसा ने कहा था हमारे साथ इस्राएल के अंदर रहो। सो मदियानी बुनियादी तौर पर बनी कतूरा की नस्ल से, मदियानी बुनियादी तौर पर इब्राहिम की तीसरी बीवी की नस्ल से है। और मदियानी जो है ये मदियान से है, और मदियान बुजुर्ग इब्राहिम का छठा बेटा है।
अब्राहम के टोटल 8 बेटे थे। उन 8 बेटों में से छठा बेटा जो था उसका नाम मदियान था, और उससे जो नस्ल हुई उसको मदियानी कहते हैं। मदियानियों ने रिश्तेदारी कायम कर ली बुजुर्ग मूसा के साथ, और अपनी बेटी जो है सफूरा जो है मदियानियों ने दे दी जनाबे मूसा को। सो जनाबे मूसा के जो साला साहब हैं वो भी मदियानी है, उनकी कौम मदियानी है। अब एक ऐसा टाइम आ गया कि मदियानियों ने अरबी कबाइल को दावत दी, और उन अरबी कबाइल में से अमालिकियों को दावत दी। अमालिकियों को दावत दी कि हमारे साथ आओ। और न सिर्फ अमालिकी वो हैं जो बनी इसू से हैं, इसू की नस्ल से है, इसू का पोता अमालिक है, और उससे अमालिकी आगे बढ़ते हैं। सो बनी इसू की नस्ल को जो जॉर्डन, जो यर्दन के गिर्दो अनवर आती है और अरब के कुछ हिस्सों के अंदर आती है, उनको दावत दी। और फिर बहुत से अरबी कबीलों को दावत दी। बनी कतूरा के लोगों ने, मदियान के लोगों ने, और वो इतने ज्यादा कसरत से हो गए, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उनके ऊंटों का शुमार नहीं हो पा रहा था। उनके ऊंट बकसरत थे, और वो मैदान के अंदर जब वो आते थे यूं करके अफवाज उनकी आती थी, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर कुजात की किताब के अंदर लिखे टिड्डी दल की तरह आते थे, अनगिनत थे, अनअकाउंटेबल थे, उनकी अकाउंटिंग नहीं हो रही थी। और रेत के जर्रों के बराबर, बाइबल में लिखा रेत के जर्रों के बराबर ये कबाइल थे, जंगजू थे, लड़ने वाले थे। और इस्राएल करते क्या थे? इस्राएल को सताते थे, इस्राएलियों को रुसवा और जलील करते थे, बेइज्जत करते थे। जहां कहीं इस्राएल के रेवड़ को देखा, भेड़ बकरियां देखी, उठा के ले गए। जहां कहीं उनके गधे देखे, उठा के ले गए, ऊंट देखे, उठा के ले गए। और अगर कोई गल्ला काट के रखता, यानी कटाई का टाइम आता, अभी इस्राएली गल्ला काट ही नहीं होते कि ये सारे के सारे अमालिकी आ जाते, और इनके साथ इनको लीड करने वाले मदियानी बनी कतूरा की नस्ल के लोग आते और इस्राएलियों से लूट कर सब कुछ ले जाते। जब ये कुछ हो रहा था, इस्राएल जो थी दिन ब दिन गुर्बत के थपेड़ों के अंदर आ गए, गरीब होते गए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के नुक्ते को, इस बात को, हिस्टोरिकल फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। जब कभी एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करती है, और जो कौम दूसरी मुफ्ता कौम होती है, जो जिसको वो फतह कर लेती है या जिसके ऊपर वो फतह पा लेती है, उसका जो देवता होता है वही उसका खुदा बन जाता है। और यही कुछ इस्राएलियों ने किया। इस्राएलियों ने देखा कि जो अमालिकी हैं, जो मदियानी हैं, जो अमूरी हैं, इन्होंने तो आप पर कब्जा कर लिया। अब वो इनके देवताओं से डरना शुरू हो गए, इनकी देवियों से डरना शुरू हो गए, और देवियों और देवताओं के डर से यहोवा खुदा को तर्क कर दिया। तो जो फरमाइए, नोट फरमाइए, इन्होंने यहोवा खुदा को तर्क कर दिया। जैसे यहोवा खुदा को तर्क किया, तो यहोवा खुदा की जगह पर इन्होंने बाल के पुत लगा लिए, यसरतें यानी लाटें खड़ी कर दी, और खड़ी करके बाल के पुजारी बन गए, बाल की प्रस्तुष करना शुरू हो गए, बालीम की प्रस्तुष करना शुरू हो गए। और जब ये बाल की प्रस्तुष करते थे, तो बाल के आगे ये दुआएं कर रहे